सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी की n टर्म्स हैं, उनका सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या फार्मूला होता है उनका। हमें ये पता है कि nth टर्म ऑफ एन एपी दिस इज इक्वल टू a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a यहाँ पर दिस इज फर्स्ट टर्म है and d is common difference. d is the common difference. यहाँ पर d common difference. अब एपी सीक्वेंस एपी लेते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स लेते हैं। एपी में कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट है। द टर्म्स विल बी लाइक दिस a plus d, a plus 2d, a plus 3d and a plus n minus 1 into d. This is the last. These are the terms of an AP. And we have to find the sum of n terms. This is Sn. A plus d, a plus 2d, dash dash a plus n minus 1 into. अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। लाइक दिस इज लास्ट टर्म एंड लास्ट सेकंड टर्म जो आएगी वो आएगी आपके पास l माइनस डी, बिकॉज दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो क्या है, आपके पास d का कॉमन डिफरेंस है। सो ये इंक्रीजिंग एपी है। वापस इसको रिवर्स ऑर्डर में ये क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग। एंड लास्ट थर्ड टर्म क्या आएगी, l माइनस 2d। इसी सीक्वेंस में इसी पैटर्न पे फर्स्ट टर्म हो जाएगी l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। सो आप सम को इस रिवर्स ऑर्डर में लिख के भी आप सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सेम एपी फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या आ जाएगा ये, दिस इज l लास्ट टर्म प्लस l माइनस d प्लस l माइनस 2d plus dash dash this is l minus n minus 1 into. अगर फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड करेंगे ट्वाइस ऑफ Sn दिस विल बी इक्वल टू d वाली जो टर्म है ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएंगी। n माइनस 1 इंटू डी से माइनस n माइनस 1 इंटू डी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, a and that is n times n into a plus n into l. This is equal to n common area a plus l first term plus last term into n. This is twice of Sn. So Sn क्या आ जाएगा, this will be n by 2 into first term plus last, and last term को आप लिख सकते हैं this is n by 2 into a plus n minus 1 into b, because this is the last term. So ultimately आपके पास फार्मूला क्या हुआ, this is n by 2 twice of a plus a twice of a plus n minus 1 into b. This is the, ये आपका रहेगा। So sum of n terms is equal to n by 2 into first term plus last term or n by 2 into twice of a plus n minus 1 into b. अब नेक्स्ट है, अगर आप दोनों एंड से इक्विडिस्टेंट जो टर्म्स हैं उनका सम फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ द टर्म्स which are equidistant from
the ends like a plus d, a plus 2b, ये आपके पास these are a minus n minus 2 into b and a minus a plus n minus 1 into b. These are n terms. अगर हम एक k लेते हैं, ak is the kth term from the beginning, and a dash k, this is kth term from the end. So a plus a k क्या होगा आपके पास, a plus a dash a k plus a k dash क्या आएगा, first term from the beginning, this will be equal to a plus k minus 1 into b, and k term from the end, जैसे सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, ये लास्ट टर्म है, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड l माइनस d आ जाएगा, एंड सेकंड है तो l माइनस d, 1d सब्ट्रैक्ट हुआ है। अगर आप यहाँ पर एक k निकालना चाह रहे हैं, a dash k, and say k term, that will be l minus k minus 1 into d. So this is equal to l minus k minus 1 into d. So यहाँ पर दोनों का सम क्या आ जाएगा, a plus k minus 1 into d plus l minus k minus 1 into d. This is equal to a plus l, first term plus last. So like हम first term from the beginning and last term from the end, first term from the end, दोनों का सम क्या होगा, a plus l, and second term from the beginning and second term from the end, ये भी क्या होगा आपके पास, a plus l k. नेक्स्ट कंसेप्ट है आपके पास, मैंने बताया था कि nth टर्म किसी AP की nth टर्म, if an is linear expression in n में linear expression है, like an is equal to capital A into n plus b. So common difference यहाँ पर क्या आएगा, common difference is equal to a, means coefficient of n आपका common difference. Now if sum of n terms is a quadratic expression in n, like Sn is equal to a n square plus b n. So यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस will be twice of the coefficient of n square. This is twice of it. This is 2. आप इसको कैसे प्रूव करेंगे, like हमारे पास Sn is equal to a n square plus b n है, so nth टर्म आप कैसे निकालेंगे, this is Sn minus 1, sum of n terms minus sum of n minus 1 terms. ये होगा आपके पास a into n square plus b n, यहाँ पर इसमें n की जगह n minus 1 पुट कर देंगे, a into n minus 1 का स्केयर प्लस b into n minus 1, सिंप्लीफाई करेंगे, a into n square minus n minus 1 का स्केयर प्लस b into
दिस इज ब्रैकेट को खोल लेंगे तो आपके पास n माइनस n प्लस बी, दिस इज n से n कैंसिल हो गया प्लस b है ये, एंड यहाँ पर a स्क्वायर माइनस n माइनस n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर है, दिस इज ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 इंटू a आएगा, दिस इज 2an माइनस a प्लस b। सो आप अगर पहले वाले कंसेप्ट से इस कंसेप्ट से कंपेयर करें तो Tn लीनियर एक्सप्रेशन इन n है, सो कॉमन डिफरेंस क्या होगा n का कोफिशिएंट एंड दैट कम्स आउट टू बी 2। सो डायरेक्ट आपके पास Sn इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका डबल आपके पास क्या होगा, that will be common difference। so हमें एक तो ये पता लगा है कि Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l होता है, या n बाई 2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू b। सेकंड, अगर nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन इन n है तो n का कोफिशिएंट कॉमन डिफरेंस होगा, अगर सम ऑफ n टर्म्स इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n तो n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका ट्वाइस आपके पास क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। थर्ड जो बात हमें पता लगी वो ये है कि स्टार्टिंग से और एंड से जो इक्विडिस्टेंट के ऊपर टर्म्स हैं उनका सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं हम, लाइक दिया हुआ है कि लेट a, b and c are the first term, comma second term and last term, then find respectively, this is respect, then find sum of n terms in terms of a, b and c, इन्हीं टर्म्स में आपको समझना। हमें ये पता है कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n अपॉन 2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू b। सो अपने पास बाकी और सब कुछ है, लेकिन n की वैल्यू हमें a b c में एक्सप्रेस करनी। इस सीक्वेंस में हमें पता है लास्ट टर्म इज इक्वल टू c है एंड दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू b। सो यहां से c माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू d है। अब d कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां पर सेकंड टर्म b है एंड दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस d, फर्स्ट टर्म प्लस d, द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू b माइनस a। तो यहां से n माइनस 1 इज इक्वल टू c माइनस a अपॉन d, एंड d की वैल्यू आपके पास b माइनस a। सो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c माइनस a अपॉन b माइनस a प्लस 1, दिस इज इक्वल टू c माइनस 2a प्लस b अपॉन b माइनस a। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज c माइनस 2a प्लस b अपॉन ट्वाइस ऑफ b माइनस a, ट्वाइस ऑफ b माइनस a, एंड दिस इज 2a, फर्स्ट टर्म आपकी a ही है, एंड n माइनस 1 इंटू d आपके पास कितना है, यहां से ये ले लो, दिस इज c माइनस a। सो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज c माइनस 2a प्लस b अपॉन ट्वाइस ऑफ b माइनस a इंटू दिस इज 2a माइनस a, दिस इज c प्लस a, दिस इज द, ऐसे कर सकते। अब हमें अगर
हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, 2 एपीज हैं, उनकी nth टर्म का रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक there are 2 APs, मीन्स उनकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डिफरेंट, 2 APs and sum of their n terms and the ratio of the sum of their n terms is 14 minus 4n is to 3n plus 5. Then find the ratio of their eighth terms. हमें दिया हुआ है Sn अपॉन S एन डैश, सम ऑफ फर्स्ट एपी है, फर्स्ट एपी के लिए फर्स्ट एपी, इसके लिए फर्स्ट टर्म है आपके पास फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म ए ले लिया एंड कॉमन डिफरेंस या a1 ले लो, a1 एंड कॉमन डिफरेंस d1, सेकंड के लिए a2 फर्स्ट टर्म है एंड d2 कॉमन डिफरेंस। सो आपके पास यहां से क्या आ जाएगा, दिस इज n by 2 into 2a1 plus n minus 1 into d1 and s n dash सेकंड एपी की n टर्म्स का सम क्या होगा, n by 2 twice of a2 plus n minus 1 into d2। यहां पर n by 2 से n by 2 कैंसिल एंड ये गिवन है आपके पास 14 minus 4n अपॉन 3n plus 5, 3n plus 5। अभी तक हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, जो कॉमन फैक्टर थे सिर्फ उनको ही कैंसिल किया। अगर ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दे लेफ्ट हैंड साइड में, a1 plus n minus 1 upon 2 into d1 and a2 plus n minus 1 upon 2 into d2, this is equal to 14 minus n 4n minus 4n upon 3n plus 5। ये अब हमें फाइंड आउट करना है क्या चीज, हमें T8 फर्स्ट एपी की टर्म अपॉन T डैश सेकंड एपी की nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो आप यहां पर ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू a1 plus 7d upon d1 a2 plus 7d। सो यहां से कंपेयर करेंगे तो हम क्या करें, n minus 1 upon 2 is equal to 7 रख दें तो n is equal to 15, अब 15 आ जाएगा, n is equal to क्या आएगा 15। सो n is equal to 15 अगर हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 8th टर्म का रेशियो आ जाएगा। तो दोनों तरफ n minus 1 upon 2 is equal to 7 रख देंगे। सो रिजल्ट विल बी, दिस इज a1 plus 7d1 upon a2 plus 7d2। राइट हैंड साइड में भी n is equal to 15 आ जाएगा, n minus 1 by 2 is equal to 7 है तो n is equal to 15।
क्या आ जाएगा आपके पास 14 माइनस 4 इंटू 15 60 अपॉन 45 प्लस 5 दिस इज इक्वल टू माइनस 46 अपॉन दिस इज 15 दिस इज इक्वल टू माइनस 23 is to 25 दिस इज द आप ऐसे केस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्ट्राइक करते हैं तो आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आपके पास एस एन अपॉन एस डैश एन टू एपीज की एन टर्म्स का सम का रेशियो दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड उनकी nth टर्म का रेशियो फाइंड आउट करना। तो आप यहाँ पर n को किससे रिप्लेस कर देंगे 2n माइनस 1 से रिप्लेस एंड इसका रेसिप्रोकल अगर दिया हो लाइक दिस इज tn अपॉन tn डैश ये दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड sn अपॉन sn डैश। सो n इज इक्वल टू क्या n को किसमें रिप्लेस कर देंगे n माइनस 1 अपॉन 2 से n माइनस 1 अपॉन 2 से रिप्लेस। सो यहां पर देखिए आपके पास sn अपॉन sn डैश ये दिया हुआ था, इसको अप्लाई करके देखते हैं तो आपके पास tn अपॉन tn डैश क्या आया दिस इज इक्वल टू 14 माइनस n की जगह क्या रख देंगे आप 2n माइनस दिस इज 2n माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास दिस इज 3 इंटू 2n माइनस 1 एंड प्लस 5। सो यहां से दिस इज 14 एंड ये प्लस 4 है क्या आ जाएगा आपके पास 18 माइनस दिस इज 8n अपॉन दिस इज 6n प्लस 2। अब हमें फाइंड आउट करना था जैसे पहले केस में टी ए अपॉन टी डैश ए, अगर 8 टर्म का रेशियो निकालेंगे तो n की जगह यहाँ क्या पुट करेंगे 8 पुट कर देंगे क्या आ जाएगा आपके पास 18 माइनस 64 अपॉन दिस इज 48 प्लस 2 दिस इज माइनस 46 अपॉन 15 दिस इज माइनस 23 अपॉन 25 एंड यही रिजल्ट आपका किससे था जो आपने सब्जेक्टिव तरीके से निकाला था। सो आपके पास 2 एपीज हैं, 2 डिफरेंट एपीज हैं, उनकी n टर्म्स का सम का रेशियो दे रखा है एंड nth टर्म का रेशियो निकालना है n की जगह क्या पुट कर देंगे 2n माइनस 1 एंड nth टर्म का रेशियो दे रखा है सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो निकालना है तो n इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे n माइनस 1 अपॉन 2। वहां पर n की वैल्यू आप जो भी टर्म जिस भी टर्म का रेशियो निकालना है उस उतना ही n को पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि इफ pth term of an AP, if pth term of an AP, not pth term, if sum of p terms of an AP is equal to q and sum of q terms of an AP is equal to p, then find the sum of p plus q terms, p plus q terms का सम फाइंड आउट करना है। सो यहां पर हमें फर्स्ट कंडीशन दी हुई है सम ऑफ p terms sp दिस इज इक्वल टू q and sq this is equal to p and हमें फाइंड आउट करना है दिस इज sp plus q, sp plus q ये हमें फाइंड आउट करना। तो इसको निकालने के लिए इसकी वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की जरूरत होगी। सो यहां से देखिए सम ऑफ p टर्म्स दिस इज p by 2 लेट A is first term
A को फर्स्ट टर्म ले लिया एंड D इज द कॉमन डिफरेंस. So P by 2 into twice of A plus P minus 1 into D is equal to क्या आ गया आपके पास? This is P, sorry, this is Q. Q के इक्वल है. So यहां से 2AP अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, प्लस P इंटू P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 2QK. सिमिलरली सेकंड केस से यही फार्मूला अप्लाई करने पे 2A इंटू Q प्लस Q इंटू Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? दिस इज इक्वल टू 2. अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे सो क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड. ये आएगा आपके पास 2A इंटू P माइनस Q एंड प्लस P माइनस Q, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर एंड माइनस P माइनस Q और इंटू D. This is equal to twice of Q minus P. Twice of Q minus P. यहां से P minus Q कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं. P minus Q कॉमन लिया आपने तो अंदर बचेगा आपके पास दिस इज 2A प्लस P प्लस Q. यहां से P minus Q बाहर गया तो आपके पास P प्लस Q बचा. यहां पर 1 माइनस 1 इंटू D एंड दिस इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लें, दिस इज P माइनस Q क्योंकि यहां पर Q माइनस P था. P माइनस Q को P माइनस Q से कैंसिल कर दें. सो 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू माइनस Q एंड हमें फाइंड आउट करना है S P प्लस Q. दिस इज इक्वल टू P प्लस Q अपॉन 2 इंटू 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D एंड इसकी वैल्यू हमें पता है दिस इज माइनस 2. सो क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज P प्लस Q अपॉन 2 इंटू माइनस 2. सो सम क्या है? दिस इज माइनस P प्लस Q. सो आपको ये बताया था अगर P टर्म इज इक्वल टू Q है एंड Q टर्म इज इक्वल टू P है तो P प्लस Q टर्म 0 होती है एंड सम ऑफ P टर्म इज इक्वल टू Q and sum of Q terms is equal to P, then sum of P plus Q terms क्या होता है? This is minus of P plus QK. This is minus of P plus QK. Next question देखिए. Next है आपके पास if P term of an AP is A, if P is equal to A means P term is equal to A and Qth term TQ is equal to B. TQ is equal to B. Then prove that sum of P plus Q term. P plus Q term. This is equal to किसके इक्वल प्रूव करना है? P plus Q upon 2 into A plus B plus this is A minus B upon P minus Q. P minus Q इसके इक्वल प्रूव करना. तो देखिए यहां से फर्स्ट ये है आपके पास A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू A के इक्वल है. A है तो इसकी फर्स्ट टर्म कैपिटल A ले लो. फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कैपिटल A. D is the common difference. D is the common difference. So A plus P minus 1 into D. This is equal to A given है and A plus Q minus 1 into D. This is B के इक्वल. So यहां से दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे.
P minus Q into D is equal to A minus B आएगा, D is equal to A minus B upon P minus Q। यहां ये अब हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज P प्लस Q टर्म और सम ऑफ P प्लस, दिस इज सम ऑफ P प्लस, ये फाइंड आउट। ये है आपके पास एस P प्लस Q इज इक्वल टू P प्लस Q अपॉन 2 into twice of A plus twice of A plus P plus Q minus 1 and into D। ये भी अगर आप यहां पर दोनों को ऐड करें सो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन and this is second, this is 2A plus P plus Q minus 1 minus 2 into D is equal to A plus B, and 2A plus P plus Q minus 1 into D minus B is equal to A plus B। यहाँ पर -2 को -1 है, सो आपके पास क्या आ जाएगा 2A plus P plus Q minus 1 into D is equal to A plus B and plus D के। सो यहां से इस टोटल फैक्टर की वैल्यू अपने पास क्या है, दिस इज इक्वल टू P plus Q अपॉन 2 into दिस इज A plus B plus D के, एंड D की वैल्यू हम जानते हैं, दिस इज P plus Q अपॉन 2 into A plus B plus A minus B upon P minus Q। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है D और S में you have to prove that B is equal to Sn minus twice of Sn minus 1 plus Sn minus 2। देखिए हमारे पास Sn सम ऑफ n टर्म्स है, अगर हम Tn दिस इज nth टर्म फाइंड आउट करें, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n minus 1 and Tn minus 1 1th टर्म फाइंड आउट करें, दिस इज Sn minus 1 minus Sn minus 2 and D is equal to क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, दैट इज Tn minus 1 and Tn कितना आपके पास, दिस इज Sn minus Sn minus 1 minus Sn minus 1 minus Sn minus 2। This is equal to Sn minus Sn minus 1 minus Sn minus 2। This is twice of Sn minus 1 and plus Sn minus 2। This is that। नेक्स्ट है आपके पास ये कह रहा है कि if pth term of an AP, if Tp is equal to 1 by 2 and Pq is equal to 1 by P, then find the sum of P plus PQ terms। SPQ आपको फाइंड आउट करना, SPQ फाइंड आउट करना। सो यहां से अगर फर्स्ट टर्म ले हम, first term of an AP is equal to A and common difference, this is D, so A plus P minus 1 into D is equal to आपके पास क्या आएगा, this is 1 upon Q, and A plus Q minus 1 into D, this is equal to 1 upon P।
दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, दिस इज p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी, दिस इज p माइनस क्यू अपॉन p। सो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो गया आपके पास, d इज इक्वल टू क्या है आपके पास 1 अपॉन p, दिस इज 1 अपॉन p। d 1 अपॉन p क्यू है, तो यहां से आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, a प्लस a इज इक्वल टू 1 बाई क्यू माइनस p माइनस 1 इंटू डी, डी है आपके पास p, दिस इज इक्वल टू 1 बाई क्यू एंड माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई क्यू एंड प्लस 1 बाई p, दिस इज आल्सो 1 अपॉन p, क्योंकि 1 बाई क्यू से 1 बाई क्यू कैंसिल। सो क्या आ जाएगा आपके पास, एस पी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है पी क्यू अपॉन 2 इंटू दिस इज ट्वाइस ऑफ ए एंड प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू टी, एंड यहां वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज पी क्यू अपॉन 2 एंड ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन पी क्यू, बिकॉज ए इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू, एंड प्लस क्या आ जाएगा पी क्यू minus 1 upon 1 upon p. This is equal to pq upon 2 and this is 2 upon pq and plus 1 minus 1 upon p. This is equal to pq upon 2 and this is 1 upon pq and plus 1. This is equal to pq into 1 plus pq अपॉन पी क्यू एंड 2 इसके साथ ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस पी क्यू अपॉन 2, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है कि देयर आर 2n प्लस 1 टर्म, इफ there are 2n plus 1 terms, 2n plus 1 terms हैं in an AP, AP में आपके पास 2n plus 1, then the ratio of, find the ratio of sum of all terms, find the ratio of sum of odd terms to sum of even terms। देखिए आपके पास let a1 is the first term and d is the common difference, so आपके पास 2n plus 1 term है, odd number of terms means a1 a2 a3 a2n plus 1, यहां पर नंबर ऑफ odd terms क्या है, odd terms, this is called to n plus 1, like 1 2 3 4 5, 5 numbers है, इनकी नंबर कितना ओड है एंड इवन कितने 2 एंड ऑड कितने हैं 3, मींस इवन से एक ओड ज्यादा होगा क्योंकि फर्स्ट भी ओड है एंड लास्ट भी आपका क्या है ओड। सो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड टर्म्स n प्लस 1 एंड नंबर ऑफ इवन टर्म्स इज इक्वल टू n। अब देखिए यहाँ एपी में कॉमन डिफरेंस आपने दी, लेकिन कॉमन डिफरेंस एंड कंसेक्यूटिव ऑड टर्म्स, दिस इज इक्वल टू 2d, डबल हो जाएगा क्योंकि मान लीजिए आपके पास क्या है, ये है दिस इज a plus d, this is first term, this is second term,
and a plus 2d, this is third term, a plus 4d, 3d, this is fourth term. So आपके पास दो कंसेक्यूटिव ऑड टर्म्स हैं, उनके बीच कॉमन डिफरेंस 2d है, एंड कंसेक्यूटिव इवन टर्म्स के बीच भी कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d. तो कंसेक्यूटिव ऑड टर्म्स इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस बिटवीन दो कंसेक्यूटिव इवन टर्म्स. इवन टर्म्स दोनों में कितना होगा आपका, दिस इज 2. सो आप जो फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो आपसे पूछ रहा है, उसको कैसे करेंगे, एस एन प्लस 1 और टर्म्स हैं, इनका सम क्या आ जाएगा, एन प्लस 1/2 इंटू ट्वाइस ऑफ ए 1 प्लस क्या आएगा आपके पास, एन प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2d, दिस इज 2d, and upon sum of n even terms, ये क्या आएगा आपके पास, n/2, एंड इवन टर्म फर्स्ट क्या होगी आपके पास, दिस इज a2, बस इवन टर्म कौन सी होगी, सेकंड टर्म. सो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज ट्वाइस ऑफ a2 प्लस ये नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 इंटू 2, ये आ जाएगा. सो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, n प्लस 1 अपॉन n इंटू क्या आ जाएगा, दिस इज 2a1 प्लस n से n कट गया, दिस इज 2nb, ये अपॉन यहां पर 2a2 को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ a1 प्लस d, एंड यहां पर क्या आएगा, 2nb and minus 2. This is n plus 1 upon n and 2a1 plus 2nb upon 2a1 plus 2b and plus 2nb minus 2. Minus 2b से minus 2b कैंसिल हो गया, and 2a1 plus 2nb, 2a1 plus 2nb ये फैक्टर भी कैंसिल हो जाएगा. तो इनका रेशियो क्या आएगा, n plus 1 upon n. This is the required ratio.